स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Is the bureaucracy anti-women? It is anti-feminist? Does it represent the general population? Is it representative? The answer in the data is no. The empirical data suggests that that is not the scenario. Though we have the right to equality in terms of our fundamental rights, but that do not reflect even in the most powerful situations and most powerful laws and the services in India. So, this lecture is about the nature of bureaucracy in India when it seems that it is working not for the favor, rather anti women. You all are welcome to the lecture. We will have two scenarios played out. Number one, overall bureaucracy, and number two, what about even if there are ample of IAS officers who are women, but not giving post of district magistrate, which restrict their further elevation to the top level as well. So, even the district magistrate are male dominated zone and not much of the women officers are being posted, and that itself plays out how the politics, that itself plays out in terms of politics and administration in India. So let us move forward. So is bureaucracy anti-women? So there was a book by Carthy Ferguson in 1984. She said that bureaucracy is largely the domain of male classes and feminist case against bureaucracy. So rather than going into bureaucracy and getting subdued by it, women need to change it fully. So the main arguments are that historically bureaucratic principle came to be associated with male and maleness. So it was the scholars like Max Weber are saying that bureaucracy is for rationality, stands on rationality. It is having principle of hierarchy. It has the sphere of competence, मतलब स्पेशलाइजेशन, और साथ में ये क्या करती है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। यहां पर वेबर ये भी कहते हैं कि रादर it is a class instrument also. Even Marx says so, that is it is a class instrument and it is the projection of the elite class का जो इंटरेस्ट है वो लोगों पे करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है। तो जब ये ट्रेडिशनली इलीट और पावरफुल सेक्शन को प्रमोट करती है तो इसका मतलब जो लीस्ट पावरफुल सेक्शन है जिसमें विमेन भी ट्रेडिशनली रही है उनके अगेंस्ट होगी। तो यहाँ पर एक ये लॉजिकल इन्फरेंस निकल के आ रहा है। इसके अलावा रिसर्चर्स लाइक कैंटर, बेटी एंड एबला हैज आल्सो सेड दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन जो हमें देखने को मिलती है वहां पर ये है, और जनरल ट्रेंड रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ विमेन टू द लोअर रंग। इसका मतलब विद इन द ब्यूरोक्रेसीज अगर विमेन आ भी रही हैं तो उनको नीचे के पायदान पे रखना है, ऊपर नहीं आने देना है। ऐसा ब्यूरोक्रेसी का एस्पेक्ट देखने को मिलता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें 3 ही चीफ सेक्रेटरी महिलाएं हैं इस समय। बहुत सारी महिलाएं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी डीजी बन रही हैं, या कहीं पर पुलिस में भी डीजी के पद पे हैं, वो भी इक्वल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इक्वल नहीं है। चीफ सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ऐसी तो महिलाएं कभी हुई नहीं है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी नहीं हुई है। सो ब्यूरोक्रेसी नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू सिविल सर्विस बट ओवरऑल, और ये आपको प्राइवेट ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिलेगा। आप देखिए कितनी जो महिलाएं हैं वो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटीज की इंडिया में, कितनी जो महिलाएं हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, या कितनी महिलाएं आपको देखने को मिलेगी इवन इन पॉलिटिक्स। सो वेयर एवर देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिस्ट जो थ्योरी है कि public sphere and private sphere. So in public sphere, all of the power which is in the public sphere is not equally shared, and still the private sphere जहां पे घर है और बच्चों का लालन पालन है वहां पर women are predominate कर रही हैं, मतलब dominate कर रही हैं, वहां पर represented हैं। So women has less chance than men to rise in the organization. Even if women, this is the theoretical underpinning that we are having. From the theory it is being derived that public administration ka bhi, that the bureaucracy is inherently anti-women. Even Mohit Bhattacharya's book New Horizons of Public Administration mentions that,
and it is reflected in the percentage of women officer in overall civil services in India, and particularly at a very important position such as district magistrate. So more women are becoming IAS officer, but only few get the prize post, that is for DM. So this was the argument in the article in the portal The Print, and it says number of women entering the IAS through UPSC competitive exam has increased in last few of the decades. I mean, particularly last decade, more than 30% of the women are regularly coming into UPSC final list and also making to IAS. But when it comes to all important post of the district magistrate, DM is no more than 19%. It means less than 20%, 1/5, right? And though they are qualifying in higher number, but district magistrate they are not giving post. So in a way, bureaucracy is also internally within the service also anti-women. It can be reflected. So over here, just think the scenario. Think the scenario that you have broken the glass shield, and you as a woman situate yourself in 1951 and situate yourself as a man in 1951. The country is saying that there would be equality and trying to bring on equality, and you are somebody who is excellent and you have been able to crack the exam, like Anna Rajam Malhotra, Anna Rajam George, and then marrying to Malhotra ji and becoming Malhotra. So first IAS officer in independent India. Here they stand as a couple. Then Kiran Bedi ji, first women IPS officer, and then Chokila Iyer ji, first women secretary, foreign secretary. विश्वलक्ष्मी विश्वनाथन विजय लक्ष्मी, फर्स्ट फाइनेंशियल कमिश्नर, रेलवे बोर्ड में जाती हैं. कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जिनके ऊपर उड़ान सीरियल भी बना था और ये उत्तराखंड की पहली डीजीपी बनती हैं और पूरे भारत की भी डीजीपी बनती हैं. और शोभा मजुमदार जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को हेड करती हैं. सुषमा नाथ जी, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस सेक्रेटरी. प्रवीण महाजन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. और अर्चना रामासुंदरन, जो आपकी सशस्त्र सीमा बल, जो कि एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, मेनली इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को गार्ड करती है, वहां पर जाती है. उसके बाद तो बहुत चीजें हुई हैं और यहाँ पर CISF में भी नैना सिंह जी भी को भी ये जिम्मेदारी मिली है, और उसके बाद भी अभी DGP ऑफ जो है मुंबई, वो भी एक महिला है महाराष्ट्र में. सो ये तो चेंज है. पर आप सिचुएशन पे दोबारा आते हैं अन्ना राजम मल्होत्रा जी के. एक बड़ा ही वियर्ड एक कॉन्सेप्ट था कि महिलाओं को तो लेना नहीं है, और लेना है तो उनसे ये बॉन्ड साइन करा लिया जा रहा था 1950s में कि आप शादी नहीं करेंगी, यदि आपने विवाह किया तो आप ये नौकरी से हाथ धो बैठेंगी. इसी वजह से जब मल्होत्रा जी से मुलाकात हुई अन्ना राजम जी की, उन्होंने बहुत लेट शादी करी, क्योंकि ये हमारी सरकार को बहुत लेट समझ में आया और जो एंटाई विमेन एक एटीट्यूड था वो चला आ रहा था. बहुत लेट शादी भी हुई, उनका नाम भी परिवर्तन हुआ. पर आप इमेजिन करिए ये कितनी बड़ी एक रोक थी. सो सब्सिक्वेंटली जो रूल था कि आप शादी करेंगे तो आप नौकरी से जाते रहेंगे, वो चेंज कर दिया गया और शी कंटिन्यूड इन द सर्विस आफ्टर मैरिज, बट प्रोग्रेस हैज बीन स्लो. और हमें देखने को मिलता है कि 1970s में जस्ट 9% के लगभग जो महिलाएं हैं वो आ पा रही हैं IAS में, और ये प्रोपोर्शन जो है 2020 तक ऊपर गया है, परंतु अभी भी हमें देखने को मिलता है चीजें उतनी दुरुस्त नहीं है. और यहाँ पर एक स्टडी करी गई है द त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा अशोका यूनिवर्सिटी के द्वारा भी. उसी स्टडी के आधार पर बहुत सारा डेटा निकल के आया है. एक ट्रेंड जो आप देख रहे हैं, वीमेन रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव्स इन द IAS बट येट टू रीच अ थर्ड लेवल ऑफ द ऑल पोजीशंस. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 9-10% है, फिर कम होता है, और यहाँ पर धीरे धीरे ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, इवन इन IAS और UPSC में भी ऊपर जा रहा है. तो ये ट्रेंड तो देखने को मिल रहा है, पर ये पूरा पिक्चर नहीं बता रहा है. सो राइज इन सिलेक्शन ऑफ वीमेन इन ऑल टुगेदर CSC जो है, IAS ही नहीं, पूरे के पूरे CSC में अगर हम देखें आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो 1990s में ये 13-14% है. जब हमारा LPG रिफॉर्म्स आते हैं, फिर ये धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है. और आप एक और चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोविड आता है आपका 2019-20 में कोविड आता है. 20 में कोविड का आना हो जाता है मार्च अप्रैल के समय. उसके बाद सडनली नंबर इंक्रीज होते हैं, कुछ बीच में डिक्रीज हो रहे हैं, पर फिर भी ये एक ट्रेंड दिख रहा है. और यहां से तो
10 परसेंटेज पॉइंट, लगभग 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज पॉइंट है, 9.5 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज होता है। इसमें बहुत बड़ा एक कारण ये भी है कि माँ बाप जो है, माता पिता जो हैं, वो अपनी जो बेटियां हैं उनको बड़े शहरों में भेजना नहीं चाहते हैं। कुछ तो एक डर का भाव है, सुरक्षा का भाव है, और जो कि आ रहा है ब्यूरोक्रेटिक फेलियर से ऑल्सो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में ब्यूरोक्रेसी की एक जिम्मेदारी है, पर्टिकुलरली आईएएस और एसएसपी आईपीएस ऑफिसर्स की। और दूसरा है कि कई बार अगर कई बच्चे होते हैं तो मेल प्रेफरेंस अभी भी देखने को मिलता है, पर जो ऑनलाइन माध्यम आया है उसने इसमें फेवरेबल भूमिका निभाई है, तभी आपको ये एकदम से ट्रेंड ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो टेक्नोलॉजी, जैसे हम कहते हैं, एक बहुत बड़ा लेवलर होती है, वो है। अभी हम ज्यादातर इस जो लेक्चर है उसका फोकस तो हमारा आईएएस है और आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, पर ओवरऑल जब ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो छोटा सा एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आईपीएस की तरफ भी जाना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत की पूरी जो पुलिस है उसमें मात्र और मात्र 10.5% ही आपकी महिलाएं हैं। टोटल पुलिस फोर्स में ओनली 10.5% आर विमेन। वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, रिसेंटली कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने बात कर ली है आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी की, जो पहली डीजीपी बनी किसी भी राज्य में। हमें पता है किरण बेदी जी जो आईपीएस बनी, पर दिल्ली की पुलिस कमिश्नर नहीं बन पाई, फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो अब डीजी की रैंक पे हैं और डीजीपी की रैंक पे हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में और राज्यों में भी। तो यहां पर देखते हैं, रश्मि शुक्ला जी टेक चार्ज एज महाराष्ट्र फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सो ये एक सुखद घटना है, सुखद अच्छी घटना है। और दूसरा, आईपीएस ऑफिसर नीना सिंह टेक चार्जेस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ इन न्यू दिल्ली। ये दोनों चीजें अभी रिसेंटली हुई हैं। और अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, सो यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैरेटिव एनालिसिस जो करती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो पाती है कि भारत में टॉप पोजीशन पे जो महिलाएं केवल 12% है, 12%, दैट इज 12%। और पर when we compare it to the developed country, the scenario is changed. How? 29% सिंगापुर में, 40% ऑस्ट्रेलिया में और 53% स्वीडन में हमें महिलाएं दिख रही हैं पावरफुल पोजीशन पे। जो आपका इनिशियली हमने थियोरेटिकल अंडरपिनिंग बताई थी, जिसमें फर्ग्यूसन जी की बुक थी द केस अगेंस्ट विमेन, केस अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी, और अबेला और लोगों का, जो बेटी लोगों का जो रिसर्च वर्क है, वो भी ये कहता है कि हाँ, ब्यूरोक्रेसी इज एंटाई विमेन, और ब्यूरोक्रेसी में विमेन आर गिवन अ इंफीरियर पोजीशन। वहां पर एक स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी जो स्ट्रक्चर है वहां पर सिंपल है, दैट यू हैव टू बी सेटिस्फाइड एट द लोअर रंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हायरार्की में आप लोअर रंग में रहेंगे। ये रिफ्लेक्ट करता है डेटा से भी। तो इसका मतलब है वो जो आज से 20, 25, 30 साल पहले की जो थ्योरीज हैं, वो अभी भी डेटा उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जर्नल स्टडीज का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महिलाओं की भागीदारी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है नया, वो शुरू हो रहा है 29 ऑफ फरवरी से। आपको बहुत ही एक अच्छा ऑफर मिल रहा है इस समय, और वो अच्छा ऑफर ये है कि लीप ईयर सेल है, क्योंकि यह वर्ष लीप ईयर है फरवरी में माह में। और आपको यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एडमिशन लेना है तो आपको इसके ऑफरिंग बता देता हूं मैं। 1 से 4 पीएम तक हमारी क्लासेस चलती हैं, और यहां पर जो आपको चीजें मिलेंगी वो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो स्कॉलर के द्वारा बनाए जाएंगे, जो क्लास में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, सब कुछ वहां पर मिलेगा। पीडीएफ नोट्स होंगे, ये पीडीएफ नोट्स जो बहुत सारी किताबों से मिलकर बनाए जाते हैं, और साथ में इसमें एडिशन होता है आपके आईआईपीए के जर्नल्स का और ईपीडब्ल्यू के जर्नल्स का भी। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलीज होता है, और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली भी। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आपको क्लास में भी कराए जाएंगे और रिफ्लेक्ट होंगे आपके नोट्स में भी। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, जिसमें टोटल 12 टेस्ट होंगे, और उसमें जो 4 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ होंगे, 8 टेस्ट होंगे सेक्शनल, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, और आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आंसर राइटिंग मेरे द्वारा बिल्कुल माफ करिएगा,
बोर्ड पे कराई जाएगी बिल्कुल जीरो से, ताकि आपको समझ में आ सके। ये ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया ऑफर है आपके लिए। और आप SC लाइव कोड का यदि यूज करेंगे, जो कि मेरे नाम के इनिशियल्स हैं, शेखर चौधरी, सो आपको 14,999 में ये कोर्स अवेल हो जाएगा, जो कि दाम जिसके काफी ज्यादा है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑफर आ रहा है वो मात्र 29 तारीख तक ही है, उसके बाद आपको नहीं मिल पाएगा। तो अपने डिसीजन करें और जल्दी से आपका स्वागत रहेगा, कोर्स में इनरोल कर लें। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो उसके लिए हम हैं। लेक्चर के लास्ट में आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी मैं बताऊंगा, जहां पर आके आपको सारी की सारी EPW IIP के बहुत अच्छे आर्टिकल्स, उसके अलावा कुछ बुक्स और भी सोर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, तो वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तारीख याद रखिएगा और कोड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सिनेरियो प्ले आउट हुआ कि भाई ओवरऑल अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेसी एंटाई वीमेन दिख रही है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण अगर 2 पोस्ट हैं जो ब्यूरोक्रेसी की हैं, वो है IPS ऑफिसर और IAS ऑफिसर। वहां पर भी कमी है, और IAS ऑफिसर्स में भी, DM में तो और भी ज्यादा कमी है। उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लेक्चर के अंत में एक बार और डील करेंगे, जो राज्य के अनुसार कहां पर क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी में और ओवरऑल मतलब सिविल सर्विसेज में और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल पे भी क्या कारण है जिसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो बहुत एक एज फैक्टर भी है। अब एज फैक्टर, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि जो जेंडर है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो एक आपको सोशल कंस्ट्रक्ट, शादी ब्याह ये सब सोशल कंस्ट्रक्ट है, फैमिली सोशल कंस्ट्रक्ट, कि क्या एज होनी चाहिए शादी ब्याह की, ये भी एक सोसाइटी डिसाइड कर रही है। जो बहुत ही एडवांस सोसाइटी है वहां 40 साल में भी लोग विवाह कर रहे हैं, जो उतनी एडवांस नहीं है वहां 25 साल एक बार मान लिया जाता है, या 30 साल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए वो उसमें थोड़ी लीनियंसी है। ऐसी ही कुछ चीजें प्ले आउट करती हैं जब कोई भी व्यक्ति, और पर्टिकुलरली अगर कोई महिला होती हैं और वो यूपीएससी की तैयारी करती हैं। यहां पर देखिए, जैसे ईरा सिंगल जी हैं, 2015 बैच की ऑफिसर हैं, वो क्या कह रही हैं एज फैक्टर के बारे में। Many families are not willing to support their daughters through the process because they are apprehensive about how they will explain those years of preparation. In case, I mean, you all know it is a war of attrition. 1%, 1.5% लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है टोटल, राइट। सो अगर कोई यूपीएससी में ना भी हो, और जगह पर भी लोग जा रहे हैं, तो वहां पर भी और नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। दैट इज द एस्पिरेंट, पूरी क्लास में 1-2% ही लोगों को सरकारी नौकरियां मिल पा रही हैं, ठीक है। अब जो बचे हुए लोग हैं वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसी और जगह जाएंगे तब भी, और शादी ब्याह के लिए पर्टिकुलरली। सो इन केस वुमेन इज नॉट एबल टू मेक इट टू द सर्विस टू अ प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, सो यदि कोई महिला 4 साल 5 साल 6 साल देती हैं, एनी वुमेन इज गिविंग, देन द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम जिनसे उनकी शादी हो रही है, उसको भी वो कैसे बता पाएंगी, ये भी एक सिनेरियो है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि यू विल सी लॉट ऑफ 30+ men as aspirants in Delhi and elsewhere, but that becomes a rarity for women. ये भी हमें देखने को मिलता है कि 30+ के बाद भी पुरुष तो लगे रहते हैं। वैसे तो जनरल कैंडिडेट के लिए एज आपके 32 बार है, पर उसके बाद भी लगे रहते हैं और पीसीएस में निकल जाते हैं, या अगर रिजर्वेशन हैं तो उसका लाभ और समय के लिए उठाते हैं। पर विमेन के साथ ऐसा नहीं है। उनके माता पिता को चिंता होने लगती है और उनका विवाह कराना ज्यादा अत्यंत जरूरी हो जाता है, ये भी बात है। साथ में हमें यह देखने को मिलता है कि एक डेटा जो बता रहा है कि ओवर 1/2 ऑफ द ऑल विमेन क्वालिफाइंग फॉर द IAS डिड सो बाय 26 ईयर्स, मतलब 50% से भी ज्यादा महिलाएं, एक तो वैसे कम है, परंतु 50% से भी ज्यादा महिलाएं जो क्रैक कर रही हैं वो 26 साल से पहले कर लेती है। मतलब उनको फिक्र होती है ज्यादा कि हमें जल्दी से क्रैक करना है, नहीं तो 28-30 तक जाते जाते वो कम होने लगती है। तो यहां पर डेटा क्या कह रहा है, देखिए, ये आपके विमेन ऑफिसर्स को दिखा रहा है जो ब्लू में है, और ये मेन ऑफिसर्स को दिखा रहा है। सो ये चीज आपको देखने को मिलती है मेन ऑफिसर्स में 33 पे, ठीक है, जो पीक हो रहा है। सो यहां पर देखें कि 26 साल पर जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर महिलाएं क्रैक करती हैं यहां पर, और बहुत ही, और यहां से लगातार डिक्लाइन हो रहा है, देखिए। और मेन के लिए ये एज पिकअप हो रही है बाद में, और ये डिक्लाइन भी
डिक्लाइन भी हो रहा है, तो ओवरऑल डिक्लाइन देख लीजिए कि यहां पर 180 है और यहां पर आपका 500 के लगभग 550 है, तो ये गैप बहुत बड़ा है। अब ये डिक्लाइन होते होते दोनों यहां पर आ रहे हैं, मतलब 35 ईयर्स के बाद यहां तक ज्यादातर लोग सरवाइव कर ही नहीं पाते हैं और कुछ कर पाते हैं। तो पीक अप 26 ईयर से पहले पहले 50% महिलाएं जो आईएएस बन रही हैं वो पहले ही क्वालिफाई कर लेती हैं। एक और चीज यहां पर बहुत ही अच्छा डेटा दिखाया गया है, एक और चीज यहां पर पिकअप होती हुई दिख रही है। देखिए, अभी आपको ये जानना जरूरी है कि 1/3 जो आपका आईएएस का कैडर होता है स्टेट लेवल में, वो पीसीएस ऑफिसर से प्रमोट होके आता है, प्रमोशन के थ्रू आता है। यहां पर देखिए ये भी प्ले आउट कर रहा है कि इवन पीसीएस में भी महिलाएं कम है। अब जैसे जैसे ये प्रमोशन की एज होती है, माना कोई 30-35 साल में 30 साल में पीसीएस ऑफिसर बन गया, तो वो 47-46 साल में जाके आईएएस ऑफिसर बनेगा। ये आपको देखने को मिलता है, दोबारा से यहां पर पीक अप होने लगता है। और ये देखिए पीक अप हो रहा है अब, और यहां पर महिलाओं का सिनेरियो वो ही चल रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो अबाइसमली बहुत ही लो है, 2-4% पे ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पीसीएस से और आईएएस बनने का सफर अब शुरू हो चुका है, और इसी वजह से यहां से प्रमोटेड आईएएस भी आईएएस बन रहे हैं। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ओवरऑल जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो या तो प्रमोशंस में भी ज्यादा मेल जो हैं आईएएस ऑफिसर्स, वो प्रमोशंस पाके भी आईएएस ज्यादा बन रहे हैं, महिलाएं नहीं बन पा रही हैं, और महिलाओं को बहुत जल्दी एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा एक बता रखा है, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है उसका। साथ में अगर हम देखें डिस्टेंस फैक्टर भी है, तो एक तो हमने हमने बताया एज फैक्टर है, उसके अलावा महिलाओं को सपोर्ट भी नहीं है, ये भी है, और डिस्टेंस फैक्टर भी देखने को मिल रहा है कि महिलाओं, अभी तक ये था कि आपको, जो हमने पहले डेटा की बात करी कि 2022 में 34% से भी ज्यादा महिलाएं ओवरऑल क्रैक कर रही हैं यूपीएससी, उससे पहले साल 25% ने किया। सो ओवरऑल 9 पॉइंट परसेंटाइल इंक्रीज हो रहा है। सो सडन इंक्रीज का एक और कारण हम रेफरेंस इन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम हाइपोथाइज कर सकते हैं उसे, कि शायद ये फेवरेबल कंडीशन जो है महिलाओं के लिए, वो घर बैठ के तैयारी कर सकती हैं, और कंपैरेटिवली दिल्ली या कहीं पर आना बहुत ही ज्यादा पैसों का एक यूज होता है, उनके लिए फेवर का काम कर रहा है। यहां पर देखिए कि बहुत सारी महिलाएं रिलेक्टेंट हैं अपनी डॉटर्स को बाहर भेजने के लिए। ऑनलाइन मीडियम हैज बीन गेम चेंजर। सो ऑनलाइन मीडियम वास्तव में फेवर कर रहा है, इट्स अ इक्वल लेवलर है ये। तो जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी वर्क्स एज अ लेवलर, तो यहां पर दिखाई देखने को मिलता है। अभी एक और सिनेरियो प्लेट आउट हो रहा है, फ्यूअर women टेक मल्टीपल ट्राइज एट द सिविल सर्विसेज एग्जाम देन मेन। अब देखिए विमेन ब्लू से दिखाया गया है, मेन को ग्रे से दिखाया गया है। यहां पर यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हैं, सो ज्यादातर महिलाएं पहला अटेम्प्ट देने के बाद रेस से बाहर हो जाती है। मतलब कि 60% से भी ज्यादा महिलाएं जब पहला अटेम्प्ट देती हैं उसके बाद आउट, दे आर नॉट इन द गेम नाउ। दूसरा, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, आपके 45% या 50% जो कैंडिडेट हैं पुरुष, वो आउट हो जा रहे हैं, और सेकंड अटेम्प्ट में दोनों आते आते इक्वल हो रहे हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में दोनों ये दिखा रहा है। तो ज्यादातर महिलाएं 60 से ज्यादा प्रतिशत से भी ज्यादा महिलाएं एक बार अटेम्प्ट देके चली जाती हैं। तो नंबर अपने आप में एस्पिरेंट्स का भी कम हो जाता है, और आपको ये पता है कि इट इज द थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट जहां पर ज्यादातर लोग क्रैक कर पाते हैं, वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा देखें, आगे बढ़ते हैं, विमेन ऑफिसर मोर लाइकली टू सीक वॉलेंट्री रिटायरमेंट देन मेन। अब जो महिलाओं के पास प्रेशर आता है, वो तो एक तो फैमिली का आता है, और फिर एक बहुत ही कॉम्पिटेंट उनको सिनेरियो मिलता है जहां पर बहुत ही कॉम्पिटिटिवनेस होती है, उनको बहुत ही कॉम्पिटेंट रहना पड़ता है। सो कॉम्पिटिशन हाई है उस जगह पर। इवन इफ यू आर एंटरिंग इनटू आईएएस, देन यू हैव टू क्लाइंब द लैडर। आईएएस आपको लेवलर मिल गया है। बहुत सारी महिलाओं ने तो ये भी कहा है कि इवन फ्रॉम द ट्रेनिंग पार्ट देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, दे हैव फेल्ट इट द डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर प्ले आउट करते हैं, इसको देखते हैं कि ज्यादातर महिलाएं या तो अपनी बैलेंस नहीं कर पाती हैं अपने परिवार को और आपके जो जॉब है उसे। तो क्या देखने को मिलता है, रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट में महिलाएं ज्यादा ले रही हैं, रेजिग्नेशन भी महिलाएं ज्यादा कर रही हैं, मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट से भी पहले 10-12 साल में ही चली जा रही हैं, वीआरएस भी नहीं ले रही है 20 इयर्स की सर्विस।
कंपल्सरी रिटायरमेंट भी उन्हें ज्यादा करा जा रहा है। सो इसका मतलब ओवरऑल देखें तो महिलाओं के लिए अनफेवरेबल काम कर रही है ब्यूरोक्रेसी, जो कि फर्ग्यूसन अपनी बुक में कह रही है द केस ऑफ विमेन अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी। ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। साथ में जेंडर गैप इन आईएएस एस्पिरेंट्स ग्रेटर फॉर दोज फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी। अभी एक तो आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब हम रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव इन द जेंडर सेंस हो सकता है कि मेन और वीमेन के केस में हम देख ही रहे हैं कि ये मेन के लिए क्या है, फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है। अब यहां पर भी विद इन द कैटेगरीज अगर आ जाएं, सो SC ST OBCs अमंग द मेन एंड SC ST एंड OBC अमंग द विमेन, यहां पर प्ले आउट देखते हैं कैसे कर रहा है। सो ये 10 ईयर का एक आपको सिनेरियो बताया गया है, 10 ईयर का कंपैरिजन किया गया है। यहां पर देखिए जनरल कैंडिडेट जो देखने को मिलता है मेल और फीमेल। सो जनरल कैंडिडेट 29% ही थी जो आ रही थी, और SCs में 22% थी, STs में 22%, OBCs में 21% जो आपके सेलेक्ट होके सर्विसेज में आ रही थी 10 साल पहले। ये फेवरेबली इंप्रूव हुआ है। देखिए 29 से 32 हो गया, तो ये ग्रीन फ्लैग है, अच्छा हुआ है। 22 से SCs के केस में 25 हो गया, STs के केस में 26 हो गया, OBCs में भी 26 हो गया, और पुरुषों का कम हुआ है। सो ओवरऑल बड़ा है, पर ऑल टुगेदर अभी भी महिलाएं बहुत कम है। यहां देखिए अगर हम बात करें कि ऑलमोस्ट 1/3 शेड्यूल कास्ट में 2018 में 1/3 ऑफ द महिलाएं हैं, 1/4 ऑफ द महिलाएं हैं, और 3/4 75% के करीब पुरुष हैं। तो 1:4 का 1:3 का रेशियो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और ऐसे ही आपको दुगने से भी ज्यादा का अंतर यहां पर है। तो महिलाएं हर कैटेगरी में कम है, थोड़ा उनका बेटर सिनेरियो हमें प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है जनरल कैंडिडेट के लिए। सो मार्जिनलाइज सेक्शन में और भी कम है महिलाएं। अब ये तो हो गया ओवरऑल आपका यूपीएससी में ट्रेंड है। एक और समस्या है, अब जब यहां पर महिलाएं आईएएस ऑफिसर बन गई हैं, तब भी इंटरनल ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। कैसे? महिलाओं को ये माना जाता है कि दे आर फिट फॉर 9 to 5 टाइप ऑफ जॉब्स, तो उनको कल्चरल इवेंट वाले या आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ दे दिए जाएं जहां पर चैलेंजिंग जॉब कम हो, ताकि वो सही से अपना जॉब मैनेज कर सकें। अब देखिए यहां पर एजुकेशन में और विमेन वेलफेयर, कल्चरल एक्टिविटीज में, फूड विभाग में, हेल्थ विभाग में महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं। पर जहां पर रियल पावर है, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आईएएस ऑफिसर, वहां पर पुरुष ज्यादा हैं। एनर्जी के केस में, अर्बन लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में पुरुष बहुत ज्यादा हैं। फिनेंस और रेवेन्यू में जहां पैसा है वहां पर, और अर्बन डेवलपमेंट में पुरुष ज्यादा हैं। इसका मतलब अर्बन डेवलपमेंट में, इसका मतलब आपका रिलेटेड टू जो म्यूनिसिपैलिटी में होगा वहां पर भी, जहां पर कमिश्नर होंगे, अर्बन डेवलपमेंट में, डिपार्टमेंट में, यहां सब में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां पर भी विमेन आर लूजिंग। तो लोअर रंग्स में ही सेटिस्फाइड, तो चॉइस ऑफ जो पोस्ट है वो भी नेगेटिवली प्ले आउट हो रहा है। अभी अगर हम 1-2 साल का करंट सिनेरियो देखने की कोशिश करें तो कैसे चीजें बदल रही हैं वो देखें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सिनेरियो देखते हैं, तो केरला एक ऐसी जगह है जहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि फेवरेबल है विमेन की तरफ, और यूनियन टेरिटरीज में, दिल्ली में ये आपको देखने को मिलता है कि यहां पर फेवरेबल सिनेरियो, जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू पुरुष। इट मीन विमेन आर मोर एज कंपेयर टू द मेन हु आर इनटू आईएएस एंड आल्सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डू रिमेंबर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जब आप आगे प्रमोशन लेते हैं, बिकॉज द कटिंग एज पे आपका इंटरेक्शन होता है फेस टू फेस विद द सिनेरियो एट द ग्राउंड लेवल, वो बहुत ही आपके करियर को शेप करता है। इमेजिन करिए आप आईएएस ऑफिसर हैं और आप 2-4 साल आपने वर्क किया, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चार्ज ही नहीं मिला, आप सीधे के सीधे आगे प्रमोट हो गए। सो आपने वो जो 4-5 साल का समय आपको धरातल पे चीजें, मतलब इट मींस एट द ग्राउंड यू कुड हैव अंडरस्टूड, आप नहीं कर पाए हैं उसे। इसके अलावा बहुत वर्स्ट परफॉर्मिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हरियाणा है, जो कि अपने आप में इनफेमस है फॉर वायलेंट क्राइम अगेंस्ट वीमेन, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि केवल 4% टोटल आईएएस में
टोटल डीएम्स में, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में टोटल केवल 4% महिलाएं, छत्तीसगढ़ में 7%, मध्य प्रदेश में 10%, and in Gujarat 9, 8, and in Bihar 10. So over here you see number of district analyzed and women DM. So that is very bad scenario. So this is overall देखने को मिले अगर तो 142 out of more than 716 districts analyzed have women posted as DM. So that is not a good scenario. So that is a very bad scenario. तो ये आपको एक देखने को मिल रहा है बायसनेस, पर थोड़ा बेहतर है कई जगहों पर, जैसे यहां पर है पंजाब में 27%, आसाम में 27%, दिल्ली में इज फेवरेबल, केरला इज फेवरेबल, राइट, एंड इट इज ऑल्सो ओके इन वेस्ट बंगाल. सो इट मीन्स ऑल टुगेदर इफ विमेन आर इन ऑफिसर्स ओवर हियर, ऑल टुगेदर आईएएस में भी वहां पर डीएम बनाई हुई है, तो वो एक बहुत अच्छा सिनेरियो है. सो दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से 9 वीमेन डीएम हैं, केरला में 14 में से 10 है, वेस्ट बंगाल में भी अच्छा रेशियो है, पंजाब में भी ठीक ठाक है, आसाम में भी ठीक ठाक है. सो ये हमें देखने को मिलता है. इट मींस आईएएस ऑफिसर इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्टिंग एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आल्सो. सो देयर इज लेस अमाउंट ऑफ बायसनेस ओवर हियर. नाउ women posted as DM. Now let us play out a scenario. How about challenging this notion that women are not able to perform in a tough situation, right? So how about challenging the taking the situation in two aspects, where there is Naxalite violence and where there is terrorism. So over here you see, in left wing extremism affected districts, out of 47 analyzed, 7 were DM, एंड जम्मू एंड कश्मीर 20 टोटल डिस्ट्रिक्ट जो एनालाइज हुए उसमें 4, इसका मतलब है 25% से भी कम, 20% से भी कम, राइट. तो ये देखने को मिलता है. So 47 districts by left-wing extremism until 2021, only 15% has district magistrate. In Jammu and Kashmir, out of 20, only 4 were district magistrates who were female out there. Mostly were male. इसका मतलब चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट्स, चैलेंजिंग काम दिया नहीं जा रहा है विमेन को. अच्छा, सो डेटा कोरोबोरेट्स मतलब प्रूफ करता है anecdotal account of women officer who allege, it means women officers who are speaking off the camera also, they do not want to name, वो बता रही हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पोस्टिंग और ट्रांसफर्स में होता है. इवन एज द इनटेक हमें देखने को मिलता है कि 1970 से 9-10% से अभी 30% के ऊपर गया है ओवरऑल यूपीएससी में भी और आईएएस में भी. बट देयर इज अ डिस्क्रिमिनेटरी एफेक्ट एंड व्हाई दैट डिस्क्रिमिनेशन प्लेज आउट, लेट अस सी दैट आल्सो. अब ये women expected to be 9 to 5 officers. So let me confess you, while in bureaucracy, I have worked in bureaucracy at the tehsil level. So it is also ingrained into men over there, mostly in bureaucracy men are working, right? It is ingrained that क्या 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर वीमेन मैडम है क्या उन्हें कॉल किया जा सकता है. Many a times there are scenarios where the district magistrate has to be woken up at night. Imagine you as subdivisional magistrate and you know that district magistrate is having kid, and at that time you can be having that inertia or inhibition that you do not want to call out, and things may go out of proportion, things may blow out of proportion because of your delay to call the women officer. This is something that I have seen on the ground. So there is an inhibition among the men, particularly officers, who do not want to call out the DM, and district magistrate is a 24/7 job. It is the most challenging job for any of the IAS officer in whole career. So now let us see. Former IAS officer Renuka Vishnath said, refusal of district collectorship to women has been rampant since independence से ही. और क्योंकि ये 24/7 टाइप का जॉब होता है तो ये समझा जाता है कि जो अल्टीमेटली एक तो सीनियर्स हैं जो कि ज्यादातर मेल्स हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, या फिर पॉलिटिशियंस भी ज्यादातर मेल हैं, वो सोचते हैं कि शायद हैंडल नहीं कर पाएंगी, या जो टफ डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं जहां राइट्स बहुत हुए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, वहां भी विमेन को पोस्टेड नहीं किया जा सकता है, करा जाता है. तो ये देखने को मिलता है. इसके अलावा अभी आपको ये तो पता ही है, एवरीबडी नोज एंड वी ऑफन लिसन टू द न्यूज ऑल्सो, कि भाई जो एक क्रोनी कैपिटलिज्म है और कई बार
पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स एक साथ मिलकर घोटाला कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि कई बार पॉलिटिशियंस ज्यादा फेवरेबल नहीं होते कि ऐसी पोजीशन पे विमेन को लाएं दैट फ्रॉम वेयर दे कैन हैव एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप, कि भाई आप हमें क्विड प्रो कर लो, हम आपको बढ़िया पोस्टिंग दे रहे हैं, आप हमें कमा के दो पैसा। उनकी नजर में विमेन ऐसे सुटेबल नहीं होती हैं। तो यहां पर द पॉलिटिकल हसलिंग विद पॉलिटिशियंस एंड सीनियर्स इन द सर्विस रिक्वायर्ड टू गेट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग ऑल्सो पुट विमेन एट द डिसएडवांटेज। ये भी डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है कि जो एक पॉलिटिकल लाइजनिंग है उसमें विमेन कहीं पीछे रह जाती हैं, क्योंकि वो ज्यादा ऐसी चीजों के पीछे जाती नहीं है। अभी नागालैंड स्टेट में बात कर लें कि वहां पर एक भी महिला, 11 में से एक भी जगह महिला नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और यहां तक कि मेनी ऑफ द प्रमोटेड आईएएस फ्रॉम पीसीएस हु केम इनटू आईएएस एज अ कैडर आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देमसेल्फ, एंड फॉर दैट मैटर पीसीएस ऑफिसर्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर एम्बेडेड इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि वो नीचे से शुरू करते हैं और जब तक वो आईएएस बनते हैं उनको 17-18 साल का अनुभव हो चुका होता है। तो एक तरीके से हम कहें वो सेटिंग कर चुके होते हैं पॉलिटिशियंस के साथ। और ब्यूरोक्रेसी में पोस्टिंग बहुत ही सेटिंग से होने वाली एक चीज है, अच्छी जगहों पे पैसा भी चलता है। सो एज अ रिजल्ट विमेन आर रेलिगेटेड टू पोस्ट दैट मिमिक 9 to 5 जॉब्स। सो जहां पर डेस्क ड्यूटी होती है, सेक्रेटरीज है, उनके ऐसी जगह पे उन्हें भेज दिया जाता है। यहां पर देखें जैसे त्रिपुरा है, 8 डिस्ट्रिक्ट में से 1 केवल। सिक्किम में कोई भी डीएम नहीं है, विमेन डीएम नहीं है। पंजाब में ठीक है, हरियाणा में केवल 1 डीएम और 4% ही डीएम है, महिलाएं हैं केवल 22 में से। वेस्ट बंगाल में सिनेरियो ठीक ठाक है, यहां पर सिनेरियो ठीक ठाक है, जो गोवा में दिख रहा है 2 में से 1, केरला में 14 में से 10 एंड दिल्ली में 11 में से 9। ओवरऑल देखिए इट इज अराउंड 20%, 19% आपको देखने को मिलता है। अब आगे बात करें, सो व्हाई वुमेन ब्यूरोक्रेट लूज आउट ऑफ सीनियर पोस्टिंग। अभी ये इसकी बात करें तो क्यों होता है। सो ओवरऑल देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन विमेन कंटिन्यू टू फेस एट द लेवल ऑफ डीएम पोस्टिंग इटसेल्फ। और जब आपको डीएम पोस्टिंग ही नहीं मिलेगी, सो आगे चल के आपका हायर लेवल पे तो प्रमोशन के लिए ये कह दिया जाएगा कि इनको तो डीएम को पोस्टिंग ही नहीं मिली है, तो इनको अनुभव नहीं है। और स्पेंड इंडिया के द्वारा जो डेटा एनालाइज किया गया है उसमें ये देखा गया है कि देयर वर ओनली 14% विमेन अपॉइंटेड एट सेक्रेटरी लेवल। तो ये केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल से आगे आके ये जो बायस है ये कंटिन्यू होता है और सेक्रेटरी लेवल पे भी रहता है मिनिस्ट्रीज में, और यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वहां भी रहता है। तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर चीफ सेक्रेटरीज भी 3 हैं अभी। और राधा रतूड़ी मैडम वाज द लेटेस्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली चीफ सेक्रेटरी, शी हैज बीन अपॉइंटेड, सीनियर आईएएस ऑफिसर शी वाज। So this is also a discriminatory aspect that you are seeing, and it starts with the district magistrate ka post only. So moreover, India has never had a women posted as cabinet, home or defense secretary, and many posts, national security advisor, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जहां पर आरबीआई के गवर्नर, जहां पर वीमेन आपको नहीं देखने को मिलती हैं। तो जो फेमिनिस्ट का जो आर्ग्यूमेंट है पब्लिक और प्राइवेट स्पेस का, वो भी एक आपको देखने को मिलता है, जहां भी पावर है वहां पर वीमेन नहीं है। अब सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई। एक सोल्यूशन ये है कि स्टेट पीसीएस में तो विमेन को क्या है, रिजर्वेशन मिलता है। सो ज्यादा से ज्यादा अभी यूपीएससी में तो ऐसा कोई विमेन के आधारित रिजर्वेशन है नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये आ सकता है, लाया जा सकता है। तो अगर स्टेट लेवल पे ही ज्यादा पीसीएस में अगर ज्यादा महिलाएं होंगी तो प्रमोट जो होके आएंगी महिलाएं एसडीएम से और पोस्ट से जो डीएम बनेंगी और आईएएस बनेंगी, क्योंकि 33% यहाँ पर इनका प्रमोटी का कोटा है। सो वो एक बढ़िया चीज हो सकती है, इसको और बढ़ाया जा सकता है, यूनियन में भी लाया जा सकता है। अवेयरनेस, फ्री कोचिंग, रेजिडेंशियल सर्विसेज, इसकी व्यवस्था करी जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी इन हाउस कोचिंग सेंटर्स होते हैं। दैट इज व्हाई यू आर सीइंग मोर एंड मोर वीमेन qualifying UPSC civil services exam. This should be encouraged in the private university as well. Many of the universities have it. Dropout ratio. So 12th के बाद जो ग्रेजुएशन करने वाली महिलाएं हैं हायर एजुकेशन में, वो ड्रॉप आउट रेशियो भी कम होना चाहिए, स्कूल में भी कम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन होना चाहिए, और बहुत सारी स्कीम्स आनी चाहिए। जब भी महिलाएं ग्रेजुएट करेंगी तो उनको पैसा गवर्नमेंट देगी, उनकी कोचिंग का भी देगी, ऐसे ही। और बहुत ही रिसेंटली जो एक चीज प्ले आउट हुई है और जो ग्राउंड पे बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगी ही, क्योंकि वी आर सीइंग दैट विद द amendment in the constitution and coming of 33% reservation
for the women politicians. When more and more women would be MPs and MLA, definitely there would be more and more women would be मंत्री भी होंगी, मिनिस्टर्स. अब जब ज्यादातर महिलाएं मिनिस्टर्स होंगी, सो वो फेवर करेंगी कि उनके साथ जो सेक्रेटरीज रहे वो अगर महिलाएं हैं एटलीस्ट एक दो ऑफिसर तो रहें. सो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा एक फेवरेबल सीन प्ले आउट हो सकता है. So more women in politics may lead to more women in positions of power in bureaucracy. So this is something, the politics would affect the gender equality or representative character of bureaucracy in terms of gender in India, in terms of sex in India in coming decade or so. This is the one of the very important, we can draw a conclusion out of it. A very important conclusion can be drawn, because the politicians are not in favor of having arguments and putting pressure too much on women. So they want male to have those positions where they could extract something, right? Over here, the scenario may be different. And also, there's the positive aspect also. It has been observed that women are less likely to be prone to corruption. Though, data sets are observed. You cannot comment that on the personality or gender specific aspect, sex specific aspect, but data says so, number one. And when more politicians and more bureaucrats would be there at the policy level, then policy making and policy application would be better. It would be more efficient, and that would further reflect, and it would be starting a cascading effect for further bettering the gender representation in the bureaucracy. So this was all about the discriminatory or rather anti-women nature of bureaucracy. And also, when women are IAS officer, then also district magistrate, the most prized post, is out of bound. So if you have any of the query, if you have any of the question regarding general studies or public administration and optional, you are very welcome to join the Telegram group and Instagram, which goes by Public Ad by Shekhar. So over here you will get lot of things. For example, your study material, IIPA and EPW के आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स के सोर्स भी मिल जाएंगे, कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे. आप कोई भी आके क्वेरी, you can directly approach to me via this handle. So that was all about the women and representation. I hope you must have gained out of it, and thank you for watching the lecture. Till the next time we meet, Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.